بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس 10th کی فزکس کا پہلا یونٹ دیٹ از لائٹ۔ ایک سیکورنگ یونٹ ہے اینڈ امپورٹنٹ ون، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا ڈیلی کا ڈیل ہے۔ لائٹ کیا ہے؟ روشنی۔ اور اس کو ہمیں پڑھنا کیوں ہے؟ بیکاز وی ان آور ڈے ٹو ڈے لائف کم اکراس ڈفرنٹ آبزرویشنز، کہ جہاں پر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے that something is going on in our eyes and brain، جس سے ہمیں یہ پوری کائنات دکھائی دیتی ہے۔ تو دکھائی کیسے دیتی ہیں؟ اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ہے کہ جو انرجی ہمیں وہ دیکھنے کی صلاحیت ہمیں پیدا کرتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی انرجی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں آج یہ جاننا ہے کہ ہم جو اپنے اراؤنڈ جو ورلڈ دیکھتے ہیں، جو دنیا دیکھتے ہیں، جو کلرفل یونیورس دیکھتے ہیں، وہ دیکھنے کی جو صلاحیت جس انرجی سے ہم میں پیدا ہوتی ہے، دیٹ انرجی از لائٹ۔ اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری بات، جب ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھتے ہیں کہ واٹ وی کم اکراس، کہ ہم کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھتے ہیں، کبھی کسی کی شکل واٹر میں دیکھتے ہیں، کیا کسی دوسری سرفیس میں دیکھتے ہیں، تو دماغ میں ڈیفینیٹلی سوال پیدا ہونے چاہیے کہ یہ آبجیکٹس کی شکلیں کیسی بنتی ہیں، یہ کیوں بنتی ہیں اور کیسے بنتی ہیں، اور اس کا ہمارے لائف میں کیا اہمیت ہے ان چیزوں کی۔ اور ڈفرینٹ تھنگس، جیسے اگر کوئی انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چشمہ پہن کے ہوتا ہے، تو اس کے سامنے بھی یہ گلاس ہوتا ہے، یہ سامنے یہ شیشہ لگانے سے اس کے آنکھوں میں کیا اثر پڑتا ہے، کیوں لگاتے ہیں وہ؟ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے سوال ایسے ہیں جو ہمیں یہ لائٹ کے بارے میں پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا۔ تو لیٹس بگن۔ اس لیے لائٹ جس انرجی کو ہم کہتے ہیں، 7th 8th میں پڑھ کے آئے ہیں کہ لائٹ از اے فارم آف انرجی which gives us this sensation of sight، یعنی جو ہمارے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے انرجی، that energy is called light۔ تو یہاں پر جو ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے، it's an electromagnetic wave۔ تو لائٹ جو ٹریول کرتی ہے from one place to another place، it travels in the form of wave۔ ویو کے بارے میں آپ نے 9th میں پڑھا ہوگا کہ وہ کرسٹس اینڈ ٹرفس بنتے ہیں، آسلیشنز ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس لائٹ میں وہ دیٹ آلسو از possessed by this light energy۔ That is why it is called an electromagnetic wave۔ اب electro magnetic اس لیے کہ it's a type of wave جس میں میڈیم کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسی انرجی ہے جو میڈیم کے تھرو بھی ٹریول کرتی ہیں اور میڈیم کے بغیر بھی ٹریول کرتی ہیں، یعنی یہ ایئر سے بھی ایئر میں بھی ٹریول کرے گی، واٹر میں بھی ٹریول کرے گی، گلاس تھرو بھی ٹریول کرے گی، اور وداؤٹ میڈیم اگر ان میں سے کچھ بھی کہیں پہ نہیں ہوگا یہ وہاں بھی ٹریول کرے گی۔ That is why it is called electromagnetic wave۔ تو the simple definition جو آپ بچوں کو نوٹ کر کے میمورائز کرنی ہے، that is light is an electromagnetic wave possessing energy which gives us sensation of sight۔ کہ لائٹ چھِ اکھ سُہ ویو انرجی یم سۭتۍ اَسہِ وٕچھنٕچ صلٲحیت پٲدٕ گژھان چھِ۔ ٹھیک، یہ جب سمپل ہے۔ ریگارڈنگ دا نیچر آف لائٹ، یعنی اگر لائٹہِ ہٕنٛز یہِ اَمہِ انرجی ہٕنٛز خصلت وٕچھو، امیُک نیچر وٕچھو، it took lot of time for scientists to reveal that and finally they come to the conclusion at one point that light is possessing the dual nature۔ اس کی خصلت ہے نا، یہ دو چیزوں سے ملتی جلتی ہے، ایک ویو کے ساتھ، یعنی it possesses the characters of wave and it possesses the characters of particle۔ تو دونوں خصلتیں لائٹ کے اندر موجود ہیں، and the particle that consists of this light they are called photons۔ ابھی تک جتنے بھی فاسٹ ٹریولنگ پارٹیکلز جن کو سائنس نے دریافت کیا ہے، ان میں سب سے زیادہ تیز چلنے والے جو پارٹیکلز یونیورس میں پائے گئے ہیں، دیٹ آر فوٹونز، جو وچ کنسٹیٹیوٹ دس لائٹ انرجی۔ اب یہ سمپل سا کوشچن دوسرا ہے کہ یہ وائی ڈز دس لائٹ کم فرام، یعنی سورس کے بارے میں، بیکاز ہمیں اپنے بچوں کو اس وقت according to the syllabus of the class 10th چلنا ہے۔ What about the source of the light? Where does the light comes from؟ سورس کے اعتبار سے آبجیکٹس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے دو کیٹیگریز میں۔ سورس آف لائٹ کے اعتبار سے، یعنی لائٹ کت چھِ اَسہِ حٲصِل گژھان، یہ لائٹ انرجی کت چھِ اَسہِ میلان، اتھ بنیادس پٮ۪ٹھ چھِ آبجیکٹس آمٕتۍ کلاسیفائی کرنہٕ into 2 categories۔ One that is luminous، very good، and another is
नॉन ल्यूमिनस। तो अब आपको फिर से ये समझना है कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें देखने की सलाहियत पैदा करती है, विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। अब ये लाइट आती कहाँ से? ऑन दैट बेसिस ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इस वक्त मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, इट इज बिकॉज कि यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है जो इस वक्त फंक्शन कर रहा है, और उस सोर्स ऑफ लाइट की वजह से ही आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट्स के इसी बुनियाद पर, सोर्स ऑफ लाइट के बुनियाद पर ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया गया है टू कैटेगरीज में, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। अब जो यहाँ पर इस कमरे की तरफ हम देखें, अपने अपने कमरे में जहाँ पर आप बैठे होंगे, यहाँ पर जो ये बल्ब इस वक्त ग्लो कर रहा है, इस बल्ब के ग्लो होने से सारी चीजें आया हो जाती हैं, सारी चीजें हमें देख रही हैं। अगर ये पावर नहीं, इफ फॉर 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स और 1 मिनट ये बिजली चली जाती है तो सारा अंधेरा छा जाएगा। तो कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं है जो हमें कमरे में दिखाई देगी। इट इज वाई बिकॉज ये जो ग्लोइंग बल्ब है, इट इज द सोर्स ऑफ लाइट दिस टाइम, इट इज एक्टिंग एज द सोर्स ऑफ लाइट दिस टाइम। ये लाइट को इमिट कर रहा है और उस लाइट एनर्जी की वजह से हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो इस वक्त ग्लो कर रहा है, ये लाइट जो इस वक्त ये ग्लोइंग बल्ब इमिट कर रहा है लाइट, इट इज ल्यूमिनस, इट इज ल्यूमिनस। और जो बाकी चीजें हैं जो इसकी वजह से हमें दिखाई दे रही हैं, जिनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो लाइट को इमिट कर सके, जैसे ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है इस सोर्स की वजह से, तो ये खुद ल्यूमिनस है। लेकिन ये बोर्ड के अंदर या मेरे अंदर, आपके अंदर, यहाँ किसी चीज के अंदर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है कि वो इमिट कर सकें और खुद दिखाई दें। दीज थिंग्स, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपके कमरे में हैं, जो इस तरह ये लाइट इमिट नहीं कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस। बिल्कुल सिंपल। अब आपको अपने दिमाग से अपने आसपास देखकर ये खुद जज करना है that which of the objects will lie under the category of luminous objects और कौन सा ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में शामिल होगा। अब जिस ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट एनर्जी इमिट होती है, इन सब ऑब्जेक्ट विच इमिट्स इट्स ओन लाइट, जो लाइट एनर्जी को इमिट करता है, दूसरों को देता है, दैट इज ल्यूमिनस। और नॉन ल्यूमिनस वो जो उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से दिखाई देते हैं, अदरवाइज वो हमें दिखाई नहीं देंगे, किसी को दिखाई नहीं देंगे। जैसे इस वक्त हम कहेंगे कि बल्ब इज नॉट द ल्यूमिनस, हाँ ग्लोइंग बल्ब, बर्निंग बल्ब जिसे आप कह सकते हैं। अगर ये ग्लो कर रहा है, इस वक्त चल रहा है, बिजली इलेक्ट्रिक करंट में चल रही है, तब ये उस टाइम ये बनता है ल्यूमिनस। इसी तरह हमारे पास होती हैं टॉर्च, लेकिन टॉर्च को हम ल्यूमिनस नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि बर्निंग टॉर्च। अगर टॉर्च चलन है तब वो ल्यूमिनस बनती है, अगर वो चलती नहीं है, अगर आपने सेलेशन किया, अगर ये कमीशन करा कि इट इज नॉन ल्यूमिनस, ये कोई लाइट इमिट नहीं करती है। तो द सोर्स इन द नटशेल सो चीज युस लाइट एनर्जी इमिट करन, ठीक, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस। और जिनके अंदर ये सलाहियत नहीं है, जो विच कैन नॉट इमिट देयर ओन लाइट, दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस। अब आप खुद मिसालें देंगे, इट इज सन, ठीक, मून इज नॉट ल्यूमिनस, बल्कि मून क्या करते हैं, वो सन की लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक, वो सन की लाइट को, हाँ हम ये कह सकते हैं कि जब मून ग्लोइंग हो तो एट दैट टाइम इट एक्ट्स एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि ये बल्ब अगर आप लिखेंगे, ल्यूमिनस कैटेगरी में, तो ये रॉन्ग है। अगर आपको बल्ब अब लिखना है, क्योंकि बल्ब तो इस वक्त इमिट कर रहा है रोशनी, तो फिर आपको क्या लिखना है, ग्लोइंग बल्ब। अगर आप टॉर्च लिख रहे हैं ल्यूमिनस में, तो ये रॉन्ग है, फिर क्या लिखना है, वही कह सकते हैं बर्निंग टॉर्च। अगर आप कैंडल यानी शमा, अगर आप कैंडल लिख रहे हैं ल्यूमिनस में, तो रॉन्ग है, आपको क्या लिखना है, बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल इज ल्यूमिनस, कैंडल इज नॉट ल्यूमिनस, लाइक दैट। इसी तरह मून ल्यूमिनस नहीं है, ग्लोइंग मून इज ल्यूमिनस, ठीक है। अब मेरी बात समझ आई। अब बाकी जितनी भी चीजें हैं, आसपास की सारी चीजें जितनी भी आपके दिमाग में आती हैं, दे आर नॉन ल्यूमिनस। तो इस तरह हमें और एक बात का पता चला कि लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो दैट एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आप देखिए, अब हम किसी सोर्स को लेते हैं, सपोज द मेन सोर्स ऑफ लाइट इज सन,
हम इसी को लेते हैं। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट, असली बुनियादी सोर्स तो सन ही है। अब हमें आगे क्या पढ़ना है कि ये जो लाइट एनर्जी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ग्लो करते हैं, यहाँ पर एक बात ऐड करना भूल गया शायद कि देयर इज ओनली वन लिविंग थिंग, वन लिविंग ऑर्गेनिज्म which is in the category, falls in the category of luminous objects, that is जुगनू। और ये है ना वो जुगनू की बारिश जो रात को चमकता है, which emits its light। ठीक, तो अब हम आते हैं तीसरी बात पे कि सन यानी सोर्स ऑफ लाइट which emits the light। अब हम लेते हैं सन को, सन emits its own light, it's a source of light। ठीक है बेटा, ये जो लाइट किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से एमिट होती है, इस लाइट एनर्जी की खसूसियत क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, आपको इसका ये कैरेक्टर एक बिल्कुल याद रखना है। वो क्या है कि मैंने पहले कहा द पार्टिकल्स दैट possess दिस एनर्जी, यानी जिन पार्टिकल हज लाइट एनर्जी possess अत मज प्रोपागेट गसान छ, हम छ कायनात फिलहाल सारे खो तेज चलन वाली। और डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि जो भी चीज तेज चलने वाली होती है वो स्ट्रेट होती है। ये देखो जहां पर अगर किसी जगह बॉल भी फेंकनी होगी ना, जो बॉल तेज निकलती है ना वो स्ट्रेट निकलती है, और जो स्लो मोशन में पक सो कर्व्ड पाथ्स में पकान। इसी तरह यहाँ पर भी सबसे तेज चलने वाले जो पार्टिकल हैं दे आर फोटॉन्स, और इन्हीं फोटॉन से लाइट एनर्जी बनती है। तो इससे हमें यह रिवील होता है कि लाइट इज द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग सब्सटेंस, यानी ये एनर्जी है सबसे तेज चलने वाली, सबसे तेज चलने वाली। कितनी तेज चलने वाली, अगर हम इस लाइट एनर्जी की स्पीड के बारे में जानना चाहेंगे तो इसकी स्पीड पता है क्या है, इसकी वेलोसिटी पता है क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जब तक आपने कहा 1, आप ये समझिए कि तब तक ये लाइट एनर्जी ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर्स। तो एक कैरेक्टर इसका फिर क्या है, लाइट का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, इट इज द फास्टेस्ट मूविंग एनर्जी, फास्टेस्ट ट्रैवलिंग, सबसे तेज चलने वाली, एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। सेकंड, अब जब ये तेज चल रही है तो नेचुरली ये स्ट्रेट चलती होगी, तो इसकी जो पाथ होगी वो स्ट्रेट होगी। जैसे वन गोली हिन पट, तो गोली की स्पीड तो लैक्स में तो नहीं होती है, ठीक, लेकिन इसकी स्पीड है लैक्स में, लैक्स किलोमीटर पर सेकंड के एतबार से की स्पीड से चलने वाले ये फोटॉन्स या ये लाइट एनर्जी जब चलेगी तो नेचुरली स्ट्रेट चलेगी। तो लाइट जब भी मूव करेगी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। क्या करती है, मूव। एक तो ये सबसे फास्ट मूव करते हैं, वो सेकंड कैरेक्टर क्या है, मूव्स, शाबाश, इन अ स्ट्रेट, shabash, moves in a straight path. This character of light, that light always travels in the straight path. ठीक, that light or travels, आप moves लिखिए, travels लिखिए, और light always travels in a straight path. ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट तक फास्ट मूव करती है, इसलिए हमेशा ट्रैवल करती है इन द स्ट्रेट पाथ। दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर। क्या कहते हैं इसे, शाबाश, रेक्टिलिनियर propagation of light. Rectilinear straight propagation means मूव करना, एक जगह ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह, यानी फैल जाना। लाइट का एक जगह से दूसरी जगह जाना कैसे जाती है, ये स्ट्रेट, ऑलवेज ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट पाथ, चाहे जिस मीडियम में भी चले, इट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट पाथ। ठीक, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। यू कैन जज इट और यू कैन टेस्ट दिस प्रॉपर्टी एट योर होम। आप एक रॉड लीजिए, उसमें से आप एक कैंडल को देखिए, एक आग बंद करके, अगर इस रॉड को मंज बाग बेंड, कैंडल से नाथ वन की, इट मीन्स जो लाइट वहां से इस रॉड के बीच में से आ रही है, इसे इस रॉड कर बेंड, अगर इस रॉड कर बेंड, यह तो कैंडल दजान। ठीक है बेटा, तो ये लाइट जो है यह बेंड कर योर वातान, अगर यह वुचान आसो। ठीक, बेंड गसन सत इन कैंडल अथ मज कहें,
shows that light travels in the straight path. यहाँ तक आई। तीसरी बात थी कि लाइट की जो कैरेक्टर्स हैं, दो कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। एक ये दैट लाइट इज द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एनर्जी। अभी तक कोई ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं दिखाई दी गई जो इससे ज़्यादा तेज चलती होगी। फिलहाल सबसे तेज चलने वाली जो एनर्जी है कायनात में, दैट इज लाइट। स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड और 3 × 10⁶ किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दैट इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक। अब हम लेंगे सन। सन से जो एनर्जी ट्रैवल करते हैं, जो लाइट आती है, इट ऑलवेज कम्स स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट ही आती है। अब हमें आगे नंबर 4th स्टेप आज का जानना है। इस पर हन ब्रोट वो देख नंबर 4th पे आगे क्या पढ़ना है। आगे ये पढ़ना है कि यह एनर्जी जब किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से टकराती है, वो कुछ ऑब्जेक्ट सरफेस से टकरावन, जैसे इस वक्त ये लाइट एनर्जी इसमें पे टकरावन, बोर्ड्स पे टकरावन, लबन पे टकरावन, मैटिंग पे टकरावन। सन की एनर्जी, जो ही सन निकलता है, सुबह तुलू होता है तो इसकी एनर्जी बिखर जाती है, तो ये हर एक चीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस पर पड़ जाती है। ये लाइट एनर्जी कुन सरफेस पे when light energy falls on any of the non-luminous surface, तो इस एनर्जी के 3 हिस्से हो जाते हैं। कितने हिस्से हो जाते हैं ये याद रखना। लाइट when strikes a surface, तो स्ट्राइक होने के बाद आप याद रखना कि इस एनर्जी के 3 हिस्से होते हैं। लेकिन यहाँ याद रखना कि मैं कह रहा हूँ 3 हिस्से होते हैं, 3 बराबर हिस्से में यूज नहीं कर रहा हूँ। 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से गसन। ये एक लकुड़ बोर्ड हिस्से ये मैं बराबर तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 3 हिस्से होते हैं, आप याद रखना। When light energy travels strikes a surface, इस एनर्जी के 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं सरफेस के टकराने के बाद? 3 हिस्से। कस हिस्से गसन बेटा? 3 हिस्से, ये याद रखना। अख हिस्स light energy on one part of this energy is absorbed by the surface। क्या कहते हैं? अच्छा मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। यानी लाइट एनर्जी अगर हम यहां से सन लेंगे, ये लाइट एनर्जी ये टकरावन कुन सरफेस, इसको सरफेस हम कहीं लिखेंगे, ठीक है बेटा। किसी भी सरफेस के साथ टकराने के बाद इस एनर्जी के 3 हिस्से होते हैं। किस एनर्जी के? लाइट एनर्जी के 3 हिस्से होते हैं। कितने क्या 3 हिस्से? One part of this energy is absorbed by the surface। सरफेस absorb, तो इट मीन्स कि जितनी लाइट एनर्जी सरफेस के साथ टकराती है सोल्यूशन वापस यवन, ये तो यार गई थी वापस यवन कि वन पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज absorbed by the object। एंड सेकंड पत दोयम हिस्स ब्याक हिस्स, वन पार्ट ऑफ दिस एनर्जी गेट्स थ्रू, यानी ट्रांसफर हो जाती है सरफेस के बीच में। फास्टेस्ट ट्रैवलिंग पार्टिकल ये सरफेस के बीच में से निकल के जाती है, ट्रांसफर थ्रू द सरफेस, ये सरफेस के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है। वन अपार पोतर पत कसम हिस्स रोद, पत रोद ब्याक हिस्स, ये कैसे गसन? ये गसन बाउंस। ये क्या होता है? तीसरा हिस्सा क्या होता है? अख हिस्स कैसे गसन? बाउंस। बाउंस क्या गो? वापस। बाउंस क्या गो? वापस। तो यहां पर हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो लाइट एनर्जी क्या है? लाइट एनर्जी जब भी किसी सरफेस से टकराती है कि कितने हिस्से होते हैं? 3। क्या क्या? वन पार्ट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इससे हमें एक कॉमन इफेक्ट नजर दिखाई देता है कि अशला वुशनेर, क्योंकि एक पार्ट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट, लेकिन वो उस पे उसके जो इफेक्ट्स हैं, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं इन आवर डेली लाइफ, वो आपको 10th में नहीं पढ़नी है। जो इस एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी के एब्जॉर्ब होने के जो इफेक्ट्स हैं और फिर उन इफेक्ट्स की जो एप्लीकेशंस इन आवर डेली टू डे लाइफ में है, वो आपको 10th में सिलेबस में नहीं है। अब रहा दूसरा पार्ट, जो लाइट ट्रैवल सरफेस को टकराने के बाद इसके थ्रू हो जाती है, यानी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक, ट्रांसफर होने के बाद इसके साथ क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है इससे, वो इफेक्ट्स की एप्लीकेशंस क्या है, दैट इज इन योर सिलेबस, वो आपको पढ़ना है। यह चीज हमें पढ़नी है कि लाइट एनर्जी एक मीडियम पे बेगिस मीडियम मीडियम मज, लेकिन इस मीडियम के चेंज होने से इस पे क्या असर पड़ेगा, उस असर से क्या एप्लीकेशंस हैं, इनसे क्या फायदतुल इंसान, वो हमें इस यूनिट में पढ़ना है। थर्ड, ये लाइट कुन सरफेस से टकराए तो ये वापस
some part of energy is bounced back. سُہ چھُ گژھان تَتھ أسۍ وَنان چھِ رِفلیکشن. سُہ باوُنس یُس ایٚنرجی یِوان چھِ اَتھ کیٛاہ اِفیکٹ چھِ اَتھ اِفیکٹس کیٛاہ ایپلِکیشنز چھِ دیٹ از ان یور سیلیبس. دیٹ از وائی کہ آپ کی جو یونٹ کے سامنے لکھا ہے لائٹ, آگے لکھا ہے ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن. تو ایک ہنٹ دیا گیا ہے کہ لائٹ انرجی جس سورس سے بھی آتی ہے, جس سرفیس کے ساتھ بھی ٹکرائے گی, اس انرجی کے کتنے حصے ہوں گے؟ 3. ایک حصہ ایبزارب ہوگا, تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں پہ. ہنٹ دیا گیا ہے کہ آپ کو صرف 2 ایفیکٹس پڑھنے ہیں. ایک ایفیکٹ یہ پڑھنا ہے کہ what happens when light is transferred from one surface to one medium to another medium, یا gets transferred through the surface. ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اسے, تم سۭتۍ کیا اثرات چھِ پیوان, تم سۭتۍ کیا ایپلِکیشن چھِ أسۍ پتہٕ حٲصِل کران, تتھ کیا فٲیدٕ چھِ اَسہِ میلان, ٹھیک, کیا کیا فائدے اٹھائے اس سے انسان. اور دوسرا ہمیں پڑھنا ہے کہ جو کسی لائٹ انرجی کا حصہ واپس آتا ہے, باؤنس ہوتا ہے, اس باؤنس ہونے کا ایفیکٹ کیا ہے, کیسے باؤنس ہوتی ہیں, اس سے کیا فائدہ ہے, اس سے کیا ایپلیکیشنز ہیں, اس کی کیا ایپلیکیشنز ہیں, وہ ہمیں پڑھنی ہے. بس 10th میں آپ کو یہی 2 پارٹس آپ کو پڑھنے ہیں, انہی 2 پارٹس کے ایفیکٹس کو پڑھنا ہے. دیٹ از ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن. اور اس ریفلیکشن کو ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. فی الحال آپ کو یہاں تک کاپی بنانی ہے. لائٹ کی ڈیفینیشن لکھو, الیکٹرومیگنیٹک ویو پوزیسنگ انرجی وچ گیو سینسیشن آف سائٹ. اس کے بعد آپ یہ اپنے کاپی پر لکھ کے رکھے کہ لائٹ کی جو سورسز ہیں, سورس آف لائٹ کی بنیاد پر آبجیکٹس کی 2 کیٹیگریز ہیں, لیومنس اینڈ نان لیومنس. اب جو آبجیکٹس اپنی جو لائٹ انرجی ایمٹ کرتے ہیں, دے آر کالڈ لیومنس which possess their own light. اور جو جن کی اپنی یہ لائٹ انرجی نہیں ہے, جو کین ناٹ ایمٹ دیئر اون لائٹ, دے آر نان لیومنس. اور اسی طرح آپ کو کریکٹرز یاد رکھنے ہیں کہ لائٹ انرجی جو ہے اٹ از دا فاسٹسٹ ٹریولنگ انرجی. ٹھیک, اسپیڈ یاد رکھنی ہے 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ, کیونکہ نیومیریکل سالو کرنے میں کام آئے گی. ٹھیک, اور یاد رکھنا ہے کہ ہر کوئی چیز, اگر آپ کرکٹ جو بھی گیم کھیلتے ہوں گے, کوئی بھی چیز زور سے پھینکو گے, تیز پھینکو گے تو وہ اسٹریٹ جاتا ہے. لائٹ سے تیز چلنے والی کوئی انرجی ہے ہی نہیں, اس لیے یہ نیچرل ہے کہ it travels in the straight path. That property of light is called the rectilinear propagation of light. اگر آپ ڈیفینیشن بنائیں گے what is rectilinear propagation of light, تو یہ کوئی طوفان نہیں ہے, بالکل ایزی ہے. آپ کو لکھنا ہے that light always travels in a straight path. That's called the rectilinear propagation of light. اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ لائٹ انرجی جس بھی لیومنس آبجیکٹ سے آتی ہیں, جب کسی سرفیس سے ٹکراتی ہیں یہ انرجی, تو اس انرجی کے کتنے حصے ہوں گے؟ 3. One of the part of the energy is absorbed by the object, another part of energy is transferred by the object, اور another part is bounced away. اب یہ سرفیس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ایبزارب گژھِ زیادہ, ٹرانسفر گژھِ زیادہ, کن باؤنس گژھِ زیادہ. اور پھر ہم اس کے ایفیکٹس پڑھیں گے کہ ٹرانسفر ہونے سے کیا ایفیکٹس پڑتے ہیں, یا کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں, اور ان کی کیا اپلیکیشنز ہیں. باؤنس ہونے سے کیا اثرات پڑتے ہیں, تو اس کے کیا اپلیکیشنز ہیں, وہی ہمیں پڑھنا ہے ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن. See you in the next video. خدا حافظ.